Since 1998, Government of India has been implementing the policy of how to get back those militants who have gone into the wrong path and take them back into the mainstream. And Government of India has been time to time giving all kind of support in the name of rehabilitation and surrender policy. And each state, except Mizoram, now if you count Sikkim, then barring two states of Sikkim and Mizoram, the scheme has been implemented. And presently, only Assam and Manipur have claimed this money for the rehabilitation and surrender policy. And most of the militants have been merged into the national mainstream, and very few are left, and we are looking forward for more surrendering in future. In terms of the numbers which Honourable Member have asked, it is a large number. I provided you in the main paper, and if you want the details, I can provide you state-wise, but it will take long time. But we are very encouraged by the numbers of the militants who have surrendered and they have merged into the mainstream. There are various steps being taken to ensure that those surrendered militants do not get back into their old profession. So for that, there are various vocational trainings also being launched by the state government, because they need permanent job or activities to ensure that they take care of not only their lives, but their family also. At the same time, the Honourable Members rightly pointed out, they also face threat from their erstwhile colleagues who are still actively involved in the insurgency activities. Yes. The central government is putting all efforts and through state government for curbing all the illegal and unlawful activities of the militants, those who are active. So that is why we are through various efforts, as I said, through our security efforts, measures being adopted, and in collaboration with the state government, we are taking various steps. And as I mentioned in the main question, that the success rate is very high. That is why I can consider that the government's policy of surrender and rehabilitation policy is successful. Sir, आसाम एक ऐसा राज्य है जिसमें कई सारे संगठनें हैं, जिसके साथ में सरकार का बातचीत भी चला, सीज फायर ऑफ ऑपरेशन भी हुआ और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट भी हुआ और काफी संख्या में सरेंडर भी हुआ है. और जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया, लोकसभा में एक सदस्य हैं जिसके बारे में जिक्र किया, बहुत कई सारे लोगों ने सरेंडर किया, और जब सरेंडर करते समय तो कोई लोकसभा राज्यसभा या कोई विधानसभा का सदस्य तो नहीं रहा, और उस समय हमारा सरकार भी नहीं था. लेकिन 2014 में अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ा और सदस्य बना, तो उसमें हम तो अभी यहाँ उठ करके इस सदन में कुछ कहने का मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जब लोकसभा इलेक्शन प्रक्रिया से अगर कोई चुन के आया, उसके लिए मैं यहाँ कोई उसका सफाई नहीं दे सकता हूँ. लेकिन जो भी सरेंडर किया जाता है, और अगर सरेंडर नहीं भी हुआ लेकिन अपना हथियार वगैरह छोड़ के आया है, या कोई जिसको हम किसी तरीके से मानते हैं कि वो किसी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसका कोई केस दर्ज नहीं है या उसका खिलाफ कोई ऐसा वारंट नहीं है, तो ऐसे में जो कानून तो सबके लिए बराबर है, और उसके तहत अगर वो आता है, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होता है और चुन के आता है, तो उसको हम मना भी नहीं कर सकते. सर, आसाम में जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारा मिलिटेंट आउटफिट है जो सरेंडर भी हुआ है, जिसके साथ में सीज फायर ऑपरेशन भी हुआ है. जो माननीय सदस्य ने जो जिक्र किया, वो आदिवासी संगठन से जुड़े हुए मुद्दा को उन्होंने उठाया. 5 आदिवासी से जुड़े हुए उनका जो इंटरेस्ट है, उसको जुड़े हुए संगठन बनाया, और जिसके साथ भारत सरकार का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हुआ है, और किसी के साथ बातचीत भी हो रहा है, वो आपको पता है. और बातचीत के साथ साथ कोई ऐसे केसेस भी है जो दर्ज किया गया था, उसको केसेस को भी विड्रॉ किया गया, क्योंकि वो प्रावधान है, जो बातचीत होते हैं या कोई जो सरेंडर करते हैं तो उसके खिलाफ
वो हम जो वो सरेंडर करता है तो केसेस भी हम विड्रॉ करता है, लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जिसमें केसेस बना रहता है, क्योंकि बातचीत जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो केस कोई कोई रहता है। इसलिए आदिवासी संगठन जितना भी नाम माननीय सदस्य ने लिया है, सारा उनके अलावा भी जो असम में जितना भी संगठन हैं, सबके साथ भारत सरकार असम सरकार के सहयोग से ये कोशिश कर रहा है कि सब मेन स्ट्रीम में आ जाए, और अगर सब मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो उनके जो मुद्दा है उसको भी ध्यान में रखेंगे और उसके खिलाफ जो केसेस है वो भी खत्म हो जाएगा। सच्चाई कड़वी होती है और कड़वी सच्चाई लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोग उस बीमारी से स्वयं त्रस्त हो चुके हैं जो बीमारी इन्होंने पूरे देश को दी है, और इसीलिए ये लोग उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते। कश्मीरी पंडितों के निष्कासन पर और कश्मीर पे हुए अत्याचार पर ये लोग मौन थे। मैं 2011-12 में असम के अंदर देख रहा था,